اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی سماعت نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کر دیا۔ عدالت نے 26 اکتوبر تک نواز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کر دیا ہے۔ عدالت نے 26 اکتوبر تک نواز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عمران۔ عمران بتائے گا اس عدالتی کارروائی کا احوال۔ جی آج بڑی دلچسپ عدالتی کارروائی ہوئی ہے۔ گو کہ عدالت نے اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پرسوں تک کے لیے ان کی گرفتاری سے ادارے کو روکا ہے، لیکن ادارہ نواز شریف کو گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتا۔ دوران سماعت آج عدالت نے نیب سے پوچھا کہ اگر ہم ان کی جو حفاظتی ضمانت کی درخواست ہے اس پر ہم ان کی ضمانت میں توسیع نہیں کرتے تو کیا نیب نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوال بارہا کیا گیا اور بینچ میں شامل دونوں معزز جج صاحبان نے نیب پروسیکیوشن ٹیم سے پوچھا، تاہم نیب کے آگے نیب کی طرف سے یہی بار جواب دیا گیا کہ نہیں، ہمیں نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہیے، ہمیں ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست۔ ٹھیک ہے، عمران آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے توشہ خانہ کیس میں خود کو احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ عدالت نے نواز شریف کی ضمانت منظور کرتے ہوئے دائمی وارنٹ بھی معطل کر دیے ہیں۔ نواز شریف 4 بار احتساب عدالت پہنچے تو کارکنان کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیراعظم کی توشہ خانہ کیس میں 4 سال بعد پیشی۔ نواز شریف نے خود کو احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ 10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور، دائمی وارنٹ بھی معطل۔ نواز شریف سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد کی احتساب عدالت پہنچے۔ نواز شریف جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوئے۔ رش اور دھکم پیل کے باعث جج نے حاضری لگوانے کے بعد نواز شریف کو جانے کی اجازت دے دی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ نواز شریف نے سرنڈر کر دیا، ان کے وارنٹ مسترد کر دیں۔ وارنٹ مسترد ہوں گے تو ٹرائل آگے چلے گا۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر نقول تقسیم کی جائیں گی۔ عدالت نے جائیداد ضبطگی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دلائل طلب کر لیے۔ ضمانتی مچلکے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے جمع کروائے۔ نگران پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پنجاب حکومت کو سزا معطلی کی درخواست کی تھی۔ نگران پنجاب کابینہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے درخواست پر سماعت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ العزیزیہ ریفرنس میں نگران پنجاب کابینہ نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو درخواست دی۔ نگران پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی درخواست پر ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کی۔ اسلام آباد سے ویڈیو لنک پر نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز نے دلائل دیے۔ نگران پنجاب کابینہ اور چیف سیکرٹری نے ویڈیو لنک پر موقف سننے کے بعد متفقہ طور پر درخواست منظور کر لی اور نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کر دی۔ دوسری جانب ذرائع نگران پنجاب حکومت کے مطابق کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت حکومت کسی بھی مجرم کی سزا معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ نواز شریف کی سال 2019 لندن روانگی سے پہلے بھی سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 31 اکتوبر 2019 کو میڈیکل گراؤنڈ پر نواز شریف کی سزا معطل کی گئی۔ 6 جولائی 2018 ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 19 ستمبر 2018 کو میرٹ پر سزائیں معطل کر کے تمام کو رہا کر دیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ نیب نے ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے۔ نیب جیسا ادارہ ہماری بدنصیبی ہے۔ یہاں سال ہر سال سے عدالتوں کے چکر لگانے والوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ وہ نیب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ میاں نواز شریف کا استقبال کرنے لاہور کیوں نہیں گئے؟ میں سینئر لیڈر نہیں ہوں اس لیے نہیں گیا۔ شاہد خاقان عباسی کا جواب: یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو جس نے اس ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ جو ناانصافی ان عدالتوں میں ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر کسی بھی عدالتی تاریخ میں نہیں ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج نیب جیسا ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے۔ اور میں پھر گزارش کروں گا اس حکومت سے بھی، اگلی حکومتوں سے بھی،
कि इस नैब के इदारे को ख़त्म कर दें, वरना आपका मुल्क नहीं चलेगा। जी, इस्तकबाल के लिए बुलाया नहीं जाता, इस्तकबाल वो सियासी बात। जी नहीं, मैं वहाँ नहीं था, मैं नहीं गया, मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ। सियासी मंजरनामे पर पीटीआई को बड़ा झटका। 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। जहांगीर तरीन से अंदलीप अब्बास, सादिया सोहेल, सुमेरा बुखारी की मुलाकात हुई, पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। तीनों खवातीन रहनुमाओं ने आईपीपी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि 9 मई वाक़या नहीं होना चाहिए था, ये मुल्क हमारा है और ये इदारे हमारे हैं, ऐसा कहा गया सादिया सोहेल की जानिब से। मजीद कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत हम सब का अपना फैसला है, रूपोश रहनुमाओं से राब्ता नहीं है, ऐसा कहा गया अंदलीप अब्बास की जानिब से। सुमेरा बुखारी ने कहा कि सब एक जगह पर इकट्ठे बैठे हैं, हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए, कहा कि सियासतदानों में निगरान होते हैं वैसे ही जजेस में निगरान होते हैं, आज भी निगरान जज ही हूँ। ये रिपोर्ट देखिए। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही डिप्टी जज की अदालत में पेश। परवेज इलाही के जुडिशियल रिमांड में तोसी, फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 नवंबर की तारीख मुकर्रर। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत होने के बायस चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी जज के रूबरू पेश किया गया। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि जैसे सियासतदानों में निगरान होते हैं वैसे ही जजेस में भी निगरान होते हैं, आज मैं भी निगरान जज ही हूँ। अदालत ने वकला की इस्तदा मंजूर करते हुए कमरा अदालत में परवेज इलाही से बात करने की इजाजत दे दी। चौधरी परवेज इलाही ने साफियों से गुफ्तगू में कहा कि सब उम्मीदें अदलिया से हैं, इंतखाबात तो करवाने ही पड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश में हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा। मियां साहब 2 नंबर का नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीए का साथ देने के सवाल पर परवेज इलाही का कहना था कि 5 माह हो गए हैं, आइंदा भी साथ निभाएंगे। जब इंतखाबात का ऐलान होगा तब इनको समझ आएगी कि इनके साथ क्या हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फलस्तीन के सफीर अहमद जवाद के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने गजा में जारी जंग में फलस्तीनियों के जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया है। आर्मी चीफ का कहना है कि आर्मी बरादरी इसराइल को मुजालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहरिक हो। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फलस्तीन के सफीर अहमद जवाद से मुलाकात। आर्मी चीफ का 1967 से पहले से सरहदी बुनियाद पर कायम फलस्तीनी रियासत की हमायत का अयादा, इसराइली फौज की शहरी आबादी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल हेडक्वार्टर्स में फलस्तीन के सफीर अहमद जवाद से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने इसराइली फौज की जानिब से मासूम शहरियों के बेदरेक कत्ल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इमदादी कारकुनों और अस्पतालों पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गजा से फलस्तीनों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का अक्कास है। आलमी बरादरी इसराइली फौज को जारी मुजालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहर्रिक हो। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि इसराइल की खुदगर्जी और तंग नजरिए के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फौज के मजालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी के अक्कास हैं। पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों को जांचना था। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने मुशाहिदा भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों को जांच किया गया। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के सीनियर अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। कमांडर ASFC ने आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तरबियती और ऑपरेशनल तैयारियों के मयार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत में इजाफे के लिए साइंसदानों और इंजीनियर्स की खिदमात को भी सराहा। सदर ममलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजर्बे पर शरीक जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। पाक फौज और मलेशियन फोर्सेस की मुश्तरका फौजी मश्क 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक मलेशिया में जारी रही। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। पाक फौज और मलेशियन फोर्सेस की मुश्तरका फौजी मश्क हुई है और मश्क 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक मलेशिया में जारी रही है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। पाक फौज और मलेशियन फोर्सेस की मुश्तरका फौजी मश्क 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक मलेशिया में जारी रही।
अमीर जमात इस्लामी की गजा में इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत। सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल गजा में स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है। गजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। अमेरिका इसराइल के जराइम में बराबर का शरीक है। हमारे खामोश रहने का मतलब इसराइल का साथ देना है। हमारे हुक्मरानों ने गजा का साथ देने का ऐलान नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज 18 दिन हो गए हैं गजा पर लोहे की बारिश जारी है और अब तक इतलात के मुताबिक 5000 से ज़्यादा हमारे मुसलमान भाई और बहनें शहीद हो गए हैं और इस वक्त गजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। सिविलियन पर बमबारी जारी है, अस्पतालों पर बमबारी जारी है, बच्चों के खेल कूद के मैदानों पर भी बमबारी जारी है। इन मज़ालिम में एक तरफ अगर इसराइल है तो इन मज़ालिम में अमेरिका 100% शरीक है। अब सवाल यह है कि इन हालात में हम क्या करें? खामोश रहे? खामोश रहने का मतलब इसराइल का साथ देना है। अफसोस ये है कि इन हालात में हमारे हुक्मरानों ने अब तक गजा के साथ देने का ऐलान नहीं किया। काश हमारे मुसलमान हुक्मरान इसका जवाब देते। तरक्याती शराकतदारों से मिलकर इंसदाद पोलियो माँ बच्चे की सेहत पर काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंसदाद पोलियो एक कौमी कॉज है जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए हमें हर बच्चे तक पहुँचना है। पोलियो खात्मे में बिल एंड मेलिंडा गेट्स की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पोलियो के आलमी दिन की तकरीब से खिताब किया। RLNG महंगी उगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG 49 सेंट फी MMBTU महंगी कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की नई कीमत $13.33 मुकर्रर कर दी गई है। RLNG महंगी उगरा ने नई कीमत भी जारी कर दी है और इस कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG 49 सेंट फी MMBTU महंगी कर दी गई है, जबकि सुई सदरन के लिए RLNG 50 सेंट फी MMBTU मुकर्रर की गई है। सुई सदरन की जानिब से RLNG की नई कीमत $13.33 मुकर्रर कर दी गई है। कारोबारी दुनिया की बात करें, जहां फॉरेक्स मार्केट में आज मुसलसल दूसरे रोज डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, जबकि कैपिटल मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई है। सोना मामूली सस्ता हो गया है। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की तलब में इजाफे के बाइस उसकी कदर में दूसरे कारोबारी रोज भी इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे इजाफे से 279 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी रही। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 43 पॉइंट्स कमी से 51,027 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तज्जियाकारों का कहना है कि मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। ट्रेडर्स ने हिस्सेस को होल्ड करने के बजाय सेलिंग को फोकियत दी, जिसके बाइस मार्केट में मंदी आई। सोने की कीमत में आज कमी हुई। फी तोला सोना 400 रुपए कमी से 2,09,200 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन पेशावर में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना आ सकी। मुतल्लिका इदारों की जानिब से भी नया किरायानामा जारी ना हो सका। निगरान वजीर इत्तलात कहते हैं कि मामले से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी है। शहरी कहते हैं हुकूमत किरायों में कमी के लिए जल्द इकदाम उठाए। मज़ीद पेशावर से जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में। की कीमत में नुमाया कमी के असरात अवाम तक न पहुँच सके। पेशावर में बैनुल अज़लाई और सूबाई समेत अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी न आ सकी। पेशावर जनरल बस स्टैंड से सूबे के मुख्तलिफ अजला को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए कम न हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी के बाद भी नया किरायानामा जारी न हो सका। ट्रांसपोर्टर्स अब भी मुसाफिरों से 20 से 30% इजाफी किराया वसूल कर रहे हैं। रेट तो वही है, पेट्रोल कम होने का फायदा आवाम को तो ना पहुंचा। आप यहाँ से टैक्सी में बैठ के बोट जाएं, आपसे 120 रुपये ले रहे हैं। अगर ये किराया कम हो के 80 रुपये 70 रुपये हो जाए तो फिर आवाम को रिलीफ बुनियादी मिलेगा। इंतजामिया को ये चेक एंड बैलेंस रखे, सिर्फ ये नोटिफिकेशन कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का किराया इतना था, अभी पेट्रोल के रेट कम होने से इतना हो गया। बस सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक ये चीज़ें होती है। अड्डा मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने किरायानामा जारी नहीं किया। डीजल की कीमतों में सिर्फ 15 रुपए कमी है। मुसाफिरों को पेट्रोल से नहीं बल्कि डीजल से रिलीफ मिलता है। डीजल जो 15 दिन में जो महंगा करते हैं या सस्ता करते हैं, इसको कम से कम 1 साल तो होना चाहिए।
अगर 1 साल भी नहीं तो 6 महीने तो कम से कम इसको टाइम देना चाहिए। मतलब अभी 15 दिन में तो किराए नहीं बन सकते, हर 15 दिन में हम किराए बनाए। सूबाई निगरान वजीर इत्तलात फेरोज जमाल का कहना है कि ट्रांसपोर्टर से मामलात तय करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने इंस्पेक्शन टीम्स बनाई है कि वो किराए को चेक करेंगी, किराए को देखेंगी कि ये किराए जो है उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं जो हमने उनको नोटिफाई जो करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद अंदरून शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी किसी किस्म की कमी देखने में नहीं आई। शहरियों का कहना है कि किरायों में कमी को यकीनी बनाना हुकूमत का काम है, ताहम अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए ये इक़दामात सुस्त रवी का शिकार है। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। PIA का माली बहरान, ईंधन की फराहमी न होने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, आज भी 51 परवाजें मनसूख कर दी गईं। खसारे के शिकार इदारे को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस हवाले से नवीद कमाल की ये रिपोर्ट देखते हैं। कौमी एयरलाइन के माली बहरान के बायस ईंधन का अहम तरीन मामला हल ना हो सका। कौमी एयरलाइन के तैयारों को फ्यूल की फरहमी पूरी तरह बहाल ना होने से मंगल 24 अक्टूबर के लिए PIA की 51 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गयी। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से इस्लामाबाद की 4 परवाजें मनसूख कर दी गयी। कराची तुर्बत की 2 परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि लाहौर से कराची की 3 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची से सक्खर और कोयटा के लिए भी 4 परवाजें मनसूख कर दी गईं। दमाम से कराची की परवाज भी मनसूख कर दी गई, जबकि लाहौर से कोयटा आने जाने वाली दोनों परवाजें मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद से भी दुबई के लिए 2, अबूधाबी के लिए 2, गिलगित के लिए 2, कोयटा के लिए 2 और स्कर्दू के लिए 2, जबकि गिलगित और सक्खर के लिए भी 2 परवाजें मनसूख हो गईं। दोहा से इस्लामाबाद आने वाली परवाज भी फ्यूल ना होने के बायस उड़ान ना भर सकी। मुल्तान से रियाज के लिए 2, दुबई के लिए 1 और शारजा से मुल्तान की परवाज भी मनसूख कर दी गई। सियालकोट से शारजा आने जाने वाली दोनों परवाजें मनसूख कर दी पड़ी, जबकि इस्लामाबाद गवादर, लाहौर गवादर और कराची से गवादर के लिए परवाजें भी मनसूख हो गईं। पीर को भी PIA की 27 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख रहीं।